Today we will start iterative method to solve the linear system. Earlier we have studied what you say direct method, that was Gauss elimination, and now we study iterative method, and these are known as fixed point method for system. So this is just similar to fixed point. We start with one example. So I am taking a 3 cross 3 system in 3 unknown x1, x2 and x3. Then 2x1 plus 10x2 plus 3x3 equals to 19. Then third equation. So as we solved equation in fixed point method, we write x equal to g of x. Okay, तो यहाँ पे भी हमने सेम करना है. So we solve one equation for x1, इसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट फॉर्म, कि आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लो x1, जैसे वहां लिखते थे ना x इक्वल टू जी ऑफ x. अब यहाँ पे x की जगह 3 अननोन है, x1 x2 x3. तो आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लो. सो सॉल्व फॉर x1, 9x1, टेक एवरीथिंग ऑन राइट हैंड साइड. सो 1/9. ओके, सेकंड इक्वेशन से आप x2 निकाल लो. So 19 minus 2x1 minus 3x3, 1/10, and solve third equation for x3. So 1/11 minus 3x1 minus 4x2. So this is fixed point form of system. Okay, कोई सॉल्व कर लो, बट बेटर है कि फर्स्ट से आप x1 निकाल लो, टेक एवरीथिंग ऑन राइट हैंड साइड. सेकंड से x2, थर्ड से x3. Then start with one initial guess. Iterative method है, so you have to start with one initial guess. So let us start with initial guess. कि initially x1 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू क्या है, x3 का वैल्यू क्या है. So I am putting, जैसे आप लिखते थे x1 equal to g of x0. So you started with initial guess x0. बट यहाँ पे ऑलरेडी x1 x2 x3 में सबस्क्रिप्ट है ना, तो यहाँ तो हम लिख नहीं सकते 0. तो इनिशियल गैस को मैंने कैसे लिखा है, ऊपर 0. ओके, तो x1 का इनिशियल वैल्यू, x2 का इनिशियल वैल्यू, x3 का. सो इन सिस्टम वी डोंट हैव एनी आइडिया, वी कैन नॉट मेक ए ग्राफ वेयर our answer will lie, so we don't know. So we just start with 0 0, or you can start with 1 1, etc. So you can start with any point. Then we write first approximation. So then we define. अब मैं इटरेटिव स्कीम लिख रहा हूँ. इटरेटिव जैसे आप फिक्स पॉइंट में लिखते थे, तो लेफ्ट में एक इंडेक्स लगा रहा हूँ k+1, जैसे आप लिखते थे x k+1 इक्वल टू g ऑफ x के, कि लेफ्ट में एक लेवल ज्यादा, राइट में एक कम. सो पुट ए लेबल ऑन एवरीथिंग. फर्स्ट इक्वेशन, देन राइट सेकंड इक्वेशन, and also write third equation in that form, iterative form. Okay, so left hand side k+1 अगली stage, और right hand side previous stage kth. Similarly write third equation, last one, x3 k+1 equal to 1/11 minus 3x1 k minus 4x2
k, and k is an index which is 0, 1, 2, etc. तो अब 0, 0 आपने फिट करना है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो आपको मिलेगा, राइट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट वैल्यू x1 1, फर्स्ट इक्वेशन 1/9, 10 माइनस x2 x3 को आप 0 फिट कर दो. ओके, sorry. So 10/9, so this is 1.111. Similarly, in second equation, 1/10, 19 minus 2 x1 0 minus 3 x3 0. So this is 1.9. Similarly, third equation, 1/11 minus 3 x1 minus 4, ये वाला जो equation 4 x2. So this is 0. So this is my first answer. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. So this is x1 1, x1 का वैल्यू पहला, फिर x2 का वैल्यू और फिर x3 का. So this is my first iteration. Similarly, I can write second iteration or second approximation. Now fit these values. So जो next answer आएगा x1 2, so 1/9, 10 minus x2. अब x2 आपने फिट करना है 1.9 और x3 तो 0 ही है. So this answer is 0.9. Then second approximation of x2, which is 1/10, 19 minus 2 x1. x1 is 1.111 minus 3 x3. x3 is 0. So this answer would be 1.6778. Then second approximation of x3, which is 1/11 minus 3 x1 minus 4 x2. So this value comes out minus 0.9939. So I can write second approximation as पहला आंसर 0.9, ठीक है, x1 x2 1.6778 and x3 is minus 0.9939. And you can repeat this procedure. After some time you will see that जो x1 है, x1 के सिमिलर बनेगा. अभी तो नहीं बन रहा, ये 1 पॉइंट है, 0.9 है, but after some time when you repeat, so if method converges, so first component will be similar to first, second will be similar to second, and third will be similar to third. And of course we will put a stopping criteria later on, and this procedure is called Jacobi method. Okay, बिल्कुल fixed point है. In fixed point you have only one equation, so you write x equal to g of x. But here we have, let us say we have 3x3 system, we have 3 equation, we have 3 unknown. तो solution का meaning क्या है? Find x1 x2 x3. So solve one equation for x1, let us solve first for x1, बाकी सब right में ले जाओ. Solve second for x2 and third for x3. Then start with one initial guess, राइट में फिट करो, जो आंसर आए दोबारा फिट करो, एंड रिपीट द प्रोसीजर. ओके, सो दैट यू डू इन एनी इटरेटिव मेथड, एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड Jacobi method, or it is also known as method of simultaneous replacements. साइमल्टेनियस का मीनिंग है कि
आपने एक बार जो आंसर निकाले, ये आंसर निकाला आपने, फिर आपने ये आंसर फिट किया, ठीक है। सो यू आर रिपीटिंग, यू आर चेंजिंग द वैल्यू साइमल्टेनियसली। और एक सेकंड अप्रोच भी है दैट इज वाइडली यूज्ड, अनदर अप्रोच। तो बेसिक फार्मूला तो सेम है। लेट अस लुक एट फर्स्ट इटरेशन, कि आपने 0 0 फिट किया, यू गॉट फर्स्ट आंसर 1.11। अब आपके पास x1 दो हैं, एक तो x1 ये है, x1 1, और एक आपके पास पहले है x1 0 विच इज 0, इनिशियल गैस। तो अब इटरेटिव में हम ये मानते हैं कि जो नया आंसर है दैट इज मोस्ट एक्यूरेट आंसर। तो क्यों ना हम अगली इटरेशन में, हमने यहाँ पे 2x1 था, हमने x1 को 0 फिट किया है, तो क्यों ना हम ये 1.1 फिट कर दें साथ के साथ, ठीक है। x3 0, इट्स ओके, फिर आपको आंसर मिलेगा, कोई चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। और जब आप x3 कंप्यूट करोगे यहाँ पे 3x1, तो x1 आप ये साथ के साथ यूज करो, ये नए वाला, और x2 में जो आपने इमीडिएटली कंप्यूट किया यूज हियर, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर को साथ के साथ यूज करना, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव रिप्लेसमेंट्स, दैट इज अनदर टेक्निक। ओके, सो अनदर अप्रोच जो है इसका, लेट्स राइट इट नेम हियर, दिस इज कॉल्ड गॉस सीडल, दिस इज गॉस सीडल, और दिस इज आल्सो नोन एज मेथड ऑफ सक्सेसिव रिप्लेसमेंट्स। तो फार्मूला तो सिमिलर ही है, सेम फार्मूला। सो वी रीराइट द सेम एग्जांपल, इटरेटिव लिख रहा हूं मैं दोबारा से। पहला इक्वेशन बिल्कुल सेम है दोनों में, 1/9 10 माइनस x2 माइनस x3, ओके। सेकेंड इक्वेशन x2k plus 1 1/10 19 माइनस 2x1 माइनस 3x3, ये था इक्वेशन। तो x1 हम साथ के साथ यूज करेंगे, तो इसका लेबल में लगाऊंगा k+1 x3k। देन थर्ड इक्वेशन x3k+1 which is 1/11 minus 3x1 minus 4x2, k is iteration count 0 1 2 3। so here x1 I am using new one and x2 is also new, क्योंकि जब आप x3 कंप्यूट करोगे तो x3 से जो पहले वाले हैं x1 x2 they were they are known immediately, so use them। बाकी इटरेशन सेम है आगे। सो फर्स्ट इटरेशन हम कैसे करेंगे, वी स्टार्ट विथ सेम इनिशियल गैस 0 0। सो माय फर्स्ट आंसर इज x1 1, फर्स्ट तो सेम होगा, फिट x2 x3 0, सो दिस इज 1.111। देन x2, अब इसमें आपने जो 19 माइनस 2 x1 आपने 0 नहीं लिखना, आपने ये लिखना है 1.111 minus 3 x3 0, so this answer is 1.6778। then third equation 1/11 minus 3x1 new one minus 4x2 use this one, not previous one 0 यूज नहीं करना, साथ के साथ यूज करना है आपने नए वाला। so this answer earlier it was 0 but now it is 0.9131, okay। and same, in the same way you can write second iteration, then we have x1 2 second stage, ऊपर जो ब्रैकेट है ये काउंट है
इट इज नॉट पावर, इट इज नॉट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और पावर नहीं है ये, ठीक है। इटरेशन काउंट है सेकंड, x1 का सेकंड वैल्यू, x2 का सेकंड और x3 का सेकंड वैल्यू। सो 1/9, 10 minus x2, x2 1.6778 minus x3, this one 0.9131, so this is 1.0262. second equation, 1/10, 19 minus 2, अब x1 आपके पास दो हैं, एक ये है, एक ये है। अगर पुराना यूज करते हो तो वो जकोबी है, ओके। अगर नए का साथ के साथ सक्सेसिवली यूज करोगे सो देन इट इज गॉस साइडल। तो नया यूज करना है आपने, ओके। x2 2x1 minus 3x3, x3 old one, so minus 0.9131, so simplify it 1.9687. Similarly, third x3, third component, minus 3x1, x1 1.0262 minus 4x2 1.9687, so this is minus 0.9588, etc. So you can repeat the procedure to get the answer with desired accuracy. If you repeat, I think after some time, first x1 3-4 बार करोगे तो x1 शायद 1 बन जाएगा ये, और x2 2 बन जाएगा और x3 -1. So I think solution of this system is 1, 2 and -1. Okay. After some time it will be 1, 2 minus. तो first के सिमिलर बनेगा, second के, third के, और iterative method है, so we will also talk about its convergence. Any doubt up to this point? Okay. So now we write the system into matrix form so that we can write journal procedure और pseudo code. तो जनरल हम लिखेंगे, so if you want to write this method in MATLAB, so you have to write general, okay. So पर प्रोग्राम बड़ा सिंपल है, इसमें गॉस एलिमिनेशन टाइप नहीं है। सो अब कर क्या रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन से आपने x1 निकालना है, सो सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन फॉर x1, सेकंड फॉर x2 एंड थर्ड फॉर x3। तो सिस्टम को हम जनरल लिखेंगे, सो आई एम राइटिंग first, I am writing it for Jacobi method, and then you can write same procedure for Gauss-Seidel. So firstly we write ith equation. अब सिस्टम को आप किस फॉर्म में लिखोगे, हमने पहले लिखा था ना, ए फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, a11 x1 प्लस a12 x2 एंड सो ऑन, a1 and xn equals to b1. So instead of writing all equations, I am writing ith equation. तो ith equation क्या बनेगी, ith रो लिख रहा हूं मैं, फिर हम i को वेरी कर देंगे, i1 to i1 फर्स्ट, i2 सेकंड। तो ith रो क्या होगी, ai, पहला लेबल i का, रो का, फिर कॉलम, पहला कॉलम ai1 x1, देन ai2 x2 एंड सो ऑन। यहाँ पे डायगोनल पे जाके आएगा आपका ai xi, इससे पहले क्या आएगा, ai i minus 1 xi minus 1, इससे अगली वैल्यू ai, i से अगला i plus 1, सॉरी ai i plus 1 and xi plus 1,
और लास्ट में क्या आएगा, ए आई एन एक्स एन इक्वल्स टू बी ऑफ आई, एंड राइट इट फॉर आई इक्वल्स टू 1 to अप टू एन। तो ith इक्वेशन से आप क्या कंप्यूट करोगे, एक्स ऑफ आई इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन x1, सेकंड इक्वेशन से x2, सो ith से आप, so we will compute this one, okay, so we solve for x of I. So for this I am writing it in some form, in short notation. So I am writing it a I j कॉलम 1 से लेके n तक, इसको एक्सक्लूड करना है बस आपने, एंड j नॉट इक्वल्स टू i, सो ए आई जे एक्स जे, इसको टर्म को अलग से लिख रहा हूं मैं, ए आई आई एक्स आई इक्वल्स टू बी ऑफ आई, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, एक्स आई निकाल लो यहां से, सो टेक दिस सम ऑन राइट हैंड साइड, सॉल्व फॉर एक्स आई, सो एक्स आई विल बी बी ऑफ आई माइनस j इक्वल टू 1 to n, j नॉट इक्वल्स टू i, ए आई जे एक्स जे, ए आई एक्स आई, तो ए आई से डिवाइड कर दो। यही आपने इटरेटिव स्कीम में किया है। और अगर आपने इटरेशंस लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, आइटरेशंस, अब लेफ्ट हैंड साइड में आप लेबल लगा दो k+1, जैसे हमने क्वेश्चंस में किया था, ओके, बी आई माइनस j1 to n, j नॉट इक्वल्स टू i, ए आई जे एक्स जे, इस पे लेवल लगा दो आप k। सो दिस इज द सूडो कोड ऑफ जैकोबी मेथड। इवन मैटलैब में भी आप यही लिखोगे, ठीक है। आप इसको न्यू वैल्यू इक्वल्स टू 1 बाई ए आई आई बी आई माइनस, ये सम कर दो आप, ए आई जे एक्स जे, ये ओल्ड वैल्यू, और लूपिंग भी ऐसे लगाओगे फॉर j1 to n कंडीशन इफ j नॉट इक्वल्स टू i। So you can write MATLAB code of this line. Even one line formula है, फिक्स पॉइंट में x इक्वल टू जी एक्स था, यहाँ पे आपका ये फार्मूला, सो ये फार्मूला लिखना है आपने। सो दिस इज द इटरेटिव स्कीम फॉर जैकोबी मेथड, एंड ऑफ कोर्स यू विल वेरी i1 to n, i इक्वल टू 1 you will get x1, i इक्वल टू 2 you will get x2 and so on, ठीक है। तो फर्दर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म भी है इसका, मैट्रिक्स फॉर्म, वो हम कैसे लिखेंगे, इसी को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ए आई आई को मैं लेफ्ट ले जा रहा हूँ, ए आई आई, ठीक है, जस्ट कन्वीनियंट वे में लिखने के लिए ए आई आई को लेफ्ट में ले जाओ, और इधर माइनस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ, j इक्वल टू 1 to n, j नॉट इक्वल्स टू i, ओके, ए आई जे एक्स जे के, ओके, लिख सकते हैं, ए आई को लेफ्ट में ले जाओ एंड प्लस बी ऑफ आई। जैसे मैं एग्जांपल को दोबारा लिखता हूँ दोबारा से, टू मेक इट मोर क्लियर, लेट्स राइट ऑन नेक्स्ट पेज। जैसे मैंने एग्जांपल था मेरे पास, एग्जांपल में मैंने ये लिखा था, फर्स्ट इक्वेशन थी 9 को इधर ले आओ, 9x1 थोड़ा स्पेस दे के लिख रहा हूँ यहाँ पे, सो राइट हैंड साइड थी 10 माइनस x2 माइनस x3 के, सेकेंड इक्वेशन था आपका 10x2 इक्वल्स टू 19 माइनस 2x1 माइनस 3x3 के, और थर्ड इक्वेशन थी आपकी 11
x3 k plus 1 equals to minus 3x1 k माइनस 4x2 k। ठीक है, अब मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं तो लेफ्ट में जो वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में k प्लस 1 है तो x2 नहीं है तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0x2 k प्लस 1 लिख सकते हो आप। और x3 भी नहीं है तो 0x3 k प्लस 1 वाले सारे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे आप x1 को भी लिख सकते हो और यहाँ पे x3 भी लिख सकते हो, है ना। 0x1 k प्लस 1 0x2 k प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं लेफ्ट की तो मैट्रिक्स क्या बनेगा 9 0 0 कोएफिशिएंट लिखोगे तो 0 10 डायगोनल 0 0 0 11 और साथ में एक कॉलम वेक्टर लिख सकता हूँ x1 k प्लस 1 x2 k प्लस 1 x3। ये मैट्रिक्स फॉर्म बना रहे हैं एक्चुअली हम। और इक्वल्स टू ये 10 19 0 जो ये थे b वाली b की वैल्यू है 10 19 0 माइनस। अब सेम वे में आप यहाँ पे जैसे फर्स्ट में x1 नहीं है x1 k नहीं है तो यहाँ पे आप डाल दो 0 x1 k। तो x1 के साथ क्या 0 x2 का साथ माइनस 1। इस माइनस को मैंने बाहर लिख दिया तो इसको प्लस 1 लिख सकते हैं 1। फिर सेकंड में x1 के साथ 2 है, सेकंड में x2 नहीं है तो 0 x3 के साथ 3। देन थर्ड इक्वेशन 3 x1 4 x2 ये नहीं है और इसके साथ जो आएगा x1 k x2 k एंड x3 k। ठीक है, ये फॉर्म हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, so matrix form. So if you observe more clearly this scene, तो ये जो बच रहा है लेफ्ट में ये मैट्रिक्स का कौन सा पार्ट है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट थे वो बच रहे हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो थी, अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स को A लिखते हो तो उसका ये डायगोनल पार्ट है। तो सेम वे में जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा है AII XIK, सो दिस इज B। ठीक है, डायगोनल पार्ट। और इस कॉलम वेक्टर को मैं लिख रहा हूं, जो ये कॉलम वेक्टर है दिस वन आई एम राइटिंग इट x k प्लस 1 इक्वल्स टू ये b है, b को आगे लिखो चाहे पीछे, b राइट हैंड साइड माइनस साइन के साथ देखो ये जो मैट्रिक्स के डायगोनल वाले पार्ट में 0 आ गया और अपर और लोअर वाली एंट्री है इसमें, अपर और लोअर। इसको मैं लिख रहा हूं L प्लस U। तो इस सीन में जो L होगा मेरा L क्या होगा, जिसके डायगोनल पे भी 0 है और नीचे वाला पार्ट 2 3 4 ये L। और U क्या है अपर वाला पार्ट 1 1 3, बाकी सब जगह 0। डायगोनल के अपर वाला पार्ट U और लोअर वाला L, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पे L प्लस U। इसके साथ क्या आ रहा है x1 x2 k स्टेज पे xk। क्लियर है नहीं? बोलो भाई, कुछ तो बोल दिया करो। तो मैं अभी डी नीचे डिफाइन कर रहा हूँ। सो सॉल्व फॉर एक्स के प्लस 1, तो मैट्रिक्स में आप k प्लस एक्स के प्लस 1 निकाला तो डी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में कर सकते हैं ना डी इनवर्स, तो डी इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा। सो आई कैन राइट एक्स के प्लस 1 इक्वल्स टू डी इनवर्स b माइनस डी इनवर्स L प्लस U एक्स के। और आई कैन राइट आगे पीछे भी लिख सकते हैं उनको, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ माइनस डी इनवर्स L प्लस U एक्स के प्लस डी इनवर्स b। और शॉर्ट में इसको लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को कहते हैं TJ फॉर जैकोबी, और इसको मैं लिख रहा हूँ b कांस्टेंट जो डी इनवर्स b है एक्स के प्लस 1, वेयर d क्या है
डी मैट्रिक्स का डायगोनल पार्ट है, डी इज डायगोनल। जो एल है, एल इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मीनिंग है कि डायगोनल दोनों में ले लेते हैं, या तो अपर में लो या लोअर में, तो दोनों में ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डायगोनल पे भी जीरो है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर, and U is strictly upper triangular matrix। और जो मैंने TJ लिखा है, TJ is minus D inverse L plus U। This is called iteration matrix for Jacobi method, and we will see in convergence further that this matrix play an important role in convergence। और रिजल्ट भी सिमिलर है, आपने फिक्स पॉइंट में पढ़ा था, कन्वर्जेंस में के लिए क्या पढ़ा था, जी का डेरिवेटिव 1 से छोटा होना चाहिए, ये पढ़ा था हमने। और यहाँ पे है जो मैट्रिक्स टीजे है उसकी आइगन वैल्यू, सबसे बड़ी आइगन वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि सारी की सारी अगर आइगन वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये मेथड कन्वर्ज करेगा। वी विल फॉर्मली स्टेट दिस रिजल्ट लेटर ऑन। सो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ Jacobi मेथड। और बी क्या है यहाँ पे, बी इज डी इनवर्स बी। ओके, सो दिस मेक सेंस। बोलो भाई, एनी डाउट इन दिस? सी दिस 3x3 एग्जाम्पल, जैसे हमने 3x3 लिखा है वैसे ही हमने ये लिखा है। एंड आल्सो यू कैन चेक हियर जो ए है, so we should add here, so U is upper triangular matrix, and most important is that A equals to D plus L plus U। So please don't get confused with previous L and U। वो L लोअर मैट्रिक्स थी, लोअर ट्रायंगुलर थी, ये स्ट्रिक्टली है। स्ट्रिक्टली मतलब डायगोनल पे भी जीरो है और नॉन जीरो एंट्री स्ट्रिक्टली बिलो वाली साइड है। अगर डायगोनल पे भी अगर एंट्री होती है तो उसको हम बोलते हैं लोअर, ठीक है, स्ट्रिक्टली। और यू है अपर, स्ट्रिक्टली अपर, डायगोनल के अपर वाली एंट्री नॉन जीरो है। और वो एल और यू गॉस एलिमिनेशन से बना था, और ये एल और यू क्या है, मैट्रिक्स ए का पार्ट है। So this is different from those L and U. Just notation same है। In mathematics, everywhere you will see lower triangular, you will see notation L, but that L depend on context. Okay. So in Gauss Seidel, A equals to diagonal plus lower plus upper। और ये क्लियर ही है कि आप डायगोनल पार्ट को, लोअर को और अपर को ऐड करोगे तो आपको पूरा मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। And we follow the same steps, so quickly I will write this form for Gauss Seidel as well। सिर्फ एक दो लाइन का डिफरेंस आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। So we write ith equation, ai1 x1 plus ai2 x2। डायगोनल से पहले ai I minus 1, फिर डायगोनल वाली एंट्री और डायगोनल से आगे वाली एंट्री, फिर लास्ट एंट्री ain xn equals to b of I running from 1 to n। अब जब आप गॉस सीडल लगाते हो, तो हमने पीछे एग्जांपल में, अब इफ आई गो बैक टू एग्जांपल, तो पहले में x1 k+1 है, ये दोनों k हैं। अगले में x2 k+1 है, बट
x2 से जो पहले है x1 वो नया k+1 और बाद वाला k, और x3 में उससे पहले वाले न्यू, बाद में तो कुछ है नहीं। तो इसका मीनिंग है कि जब आप xi कंप्यूट करोगे तो xi से पहले वाले सारे, पहले वाले कौन से, ये सारे, दे विल बी न्यू, और उसके बाद वाले दे विल बी ओल्ड। तो हम क्या करते हैं, सम को दो वे में लिख देते हैं। पहला सम डायगोनल तक 1 से लेके i-1 तक, यहां तक कॉलम तक, एक सम डायगोनल से पहले, फिर डायगोनल वाली एंट्री, फिर डायगोनल के बाद i+1 से लेके लास्ट तक। तो सम आई एम राइटिंग सेपरेटली, बाकी तो सेम है। यू विल सॉल्व फॉर xi, इनको राइट हैंड साइड में ले जाओ, दोनों को b में माइनस कर दो, ठीक है। उसमें पूरा सम था, यहाँ पे दोनों अलग अलग लिख दिए मैंने। सो ji+1 to n aij xj, and you will divide with aii, okay, that you do, you solve। अब जब इटरेशंस लिखेंगे हम इसमें, तो थोड़ा सा डेविएशन होगा इटरेशंस में। लेफ्ट में तो आप लेबल लगा दोगे k+1, इट्स ओके, दैट यू डू इन एनी इटरेटिव 1/ai, ये सेम रहेगा। बट जो डायगोनल से पहले हैं दे विल बी न्यू, तो न्यू को मैं लिख रहा हूं k+1। तो आपने इस पे जो लेबल लगाना है, आई से पहले ये k+1, और जो बाद वाले हैं दे विल बी ओल्ड वन, aij xj, इन पे आपने लेबल लगा देना k, ओके। बाकी सब कुछ सेम है, k0 1 2, और अगर दोनों पे k लगाते हो तो वो जकोबी है, और डायगोनल से पहले k+1 बाद में k, तो वो गॉस सीडल है। ये डिफरेंस है दोनों में, प्रोग्राम भी सेम है बिल्कुल, ठीक है जी। जस्ट सिंबॉलिक है ना, जैसे आप नए आंसर को, जब आप प्रोग्राम लिखोगे इसको नए को, मान लो आप x1 कह दोगे, तो यहाँ पे ये x1 आएंगे, ये इनिशियल गैस होगा तो x0 डाल दोगे यहाँ पे, ओके। जब x1 निकालोगे तो उसमें x2 x3 ओल्ड यूज होंगे। व्हेन यू कंप्यूट x2, तो x2 से पहले x1 दैट विल बी न्यू, एंड आफ्टर x2 x3 दैट विल बी ओल्ड, एंड सो ऑन। तो i से पहले वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुके होंगे ना साथ के साथ, तो उनको आपने लेबल लगाना है k+1। और सेम वे में हम मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा था मैट्रिक्स फॉर्म। यही एग्जांपल जो मैंने 3/3 लिखा था, इसको आपने ध्यान से लिखना है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे x1 क्या होगा, x1 को आप यहाँ से हटा के, आपने यहाँ डाल देना है, क्योंकि k+1 वाले लेफ्ट में रखो आप, तो 2x1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो कीप k+1 इंडेक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड and k on the right hand side to write its matrix form। तो बता सकते हो क्या आएगा फिर? पहले इस फॉर्म में लिखेंगे हम उसको, aii xi k+1, इधर ले जाओ इनको, j = 1 to i-1 aij xj k+1 equals to i+1 to n aij xj, b को मैं लास्ट में लिख रहा हूँ b of i, ठीक है। k+1 वाले लेफ्ट में और वो राइट में। तो अगर आप मैट्रिक्स देखोगे, जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा था, तो मैट्रिक्स में डायगोनल और उससे पहले वाला पार्ट लेफ्ट में जाएगा, और डायगोनल के अपर वाला पार्ट वो राइट में जाएगा। अपर, लोअर वाला भी लेफ्ट में रहेगा ना, तो क्या बनेगी मैट्रिक्स फॉर्म फिर इसकी? लेफ्ट में कौन सा रहेगा? डायगोनल प्लस लोअर,
एक्स के प्लस वन, और राइट में नेगेटिव साइन के साथ जाएगा अपर पार्ट केथ पे, और ये बी आई को क्लब करके मैं लिख रहा हूँ बी कॉलम वेक्टर। ठीक है, उसमें डायगोनल लेफ्ट में था, अब डायगोनल और लोअर पार्ट भी लेफ्ट में, बस ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी अपर तो पहले भी राइट में था अब भी राइट में है। सो सॉल्व फॉर एक्स के प्लस वन, प्री मल्टीप्लाई डी प्लस एल इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। डी प्लस एल को हटाना है यहाँ से, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो डी प्लस एल इनवर्स से, प्री, एंड यू नो मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज, हमेशा नहीं होता ना, तो प्री मल्टीप्लाई करना है। सो माइनस डी प्लस एल इनवर्स यू प्लस डी प्लस एल इनवर्स बी। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को लिखा टी इटरेशन, जी गॉस सीडल, साथ में एक्स के प्लस बी, जैसे हमने पहले लिखा था ये वाला सेम। सो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गॉस सीडल मेथड, वेयर टी जी क्या है, माइनस डी प्लस एल इनवर्स यू, एंड दिस इज कॉल्ड iteration matrix of Gauss-Seidel method, and B is constant matrix D plus L inverse B, जो B से आ रहा था, दोनों ही कांस्टेंट है वैसे तो, B प्लस D प्लस L इनवर्स B। ओके, सो दोनों को T लिखा है, टी जी, you have to memorize this final formula, xk plus 1 equal to tg xk plus b. What is tg? Minus d plus l inverse u. This is called iteration matrix of Gauss-Seidel। और जैकोबी में भी सेम लिखा था हमने, xk plus 1। अब सारे इटरेटिव में हम ये लिखते हैं, फिक्स पॉइंट में आप क्या लिखते थे, xk plus 1 equal to g of xk, वही हमने लिखा है, लेफ्ट में लेवल ज्यादा राइट में कम, तो g की जगह यहाँ पे t आ रहा है, और एक कांस्टेंट b भी आ रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो tg क्या है, माइनस d इनवर्स l प्लस u, दिस इज इटरेशन मैट्रिक्स, यू कैन से दिस इटरेशन मैट्रिक्स ऑफ जैकोबी मेथड, and we will study in next class that if all the eigenvalue of these iteration matrix, they यानी कि जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है, if that is less than 1, strictly less than 1, then these method converges for any choice of initial guess. So you can start with any point, you will get answer. But if eigenvalue of that matrix are greater than 1 or equals to 1, then no convergence occur. एक तो हमने डायरेक्ट पढ़े थे ना पहले, गॉस एलिमिनेशन, वो तो डायरेक्ट था, देयर वाज नो इटरेशन, दैट ओनली डिपेंड ऑन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, प्लस माइनस करते थे ना, उसमें तो कन्वर्जेंस की कोई बात ही नहीं थी, दे वर एग्जैक्ट मेथड। बट हियर यू आर स्टडिंग इटरेटिव मेथड, you are starting with one point, and it is always possible that you may get answer, means you will get convergence, or you may not get answer, it depends on these iteration matrix। okay, so I'll stop now, any doubt you have? bolo। okay, then see you tomorrow।